Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Daily morning, when we wake up and we read the comments of our subscribers, some of the comments are towards lot of anxiety that is existing in the candidates about the date of exam. Today also one of our subscribers shared, sir, lockdown in West Bengal is extended up to 1st July. First thing, we have to understand that such type of news will continue to flow in, because nobody will can say that this disease is under control, because the work is to be done on two fronts. First is the level of vaccination, and everybody knows that the vaccination has slowed down in the month of May or June due to non-availability of vaccine in the country. But there are indications that the production may be ramped up and vaccination process may be faster in coming days or coming months. We have to wait and see. Second is whether this is under control or this is on account of reduction of testing or any other thing. These are not in our control, because we have to believe what is presented before us, that is the statistical data that is available to us. So as a candidate, what should be our priority? Can anybody guess the date of SBI Junior Associate Prim examination? To my mind, it is the most difficult task and no one can guess. But once there is uncertainty, what is the best recourse that helps the candidate? That is, we have to discuss. The best recourse is we have to imagine a imaginary date, and that imaginary date sets a agenda for us. Say if you put a date in your mind that the 4th July is the likely date. This is an imaginary date, not based on any information. Say you put this date in your mind. So what is the effect of that? The effect of that is you will be preparing, keeping in view 4th July as exam date from today. And say exam does not happen on 4th. It happens on 11th. You get 7 extra days to revise. So it has not inflicted any harm to you. But if you assume that exams will not happen, if you assume exams are postponed forever, naturally you will not be able to concentrate on study. And if you are unable to concentrate on study, who will be loser? Who will be loser? Think. Only you. Because your competitor is not thinking on these lines. He is preparing. She is preparing. Competition means the opportunities are limited and the aspirants are in lakhs. So there will be always a set of people, those are consistent. There will be always people, those are persistent. So if you also become consistent and persistent, you are in race. But if you are driven by the news that this lockdown is extended in such state, in such state and such state, exams may not happen soon, who is loser? You. No other person. Because if you are influenced by such news, you will slow down your preparation, you will be left behind in the race. Competition means race. How to win it? So nobody have any inkling about the date unless it is announced by State Bank, because State Bank of India has to consider many factors before they declare the result. But till the time they declare the result, we have to declare date for ourselves. And that's why I am saying, for the time being, we are fixing date for ourselves as first week of July. This is a imaginary date, not real. I am repeating.
Some people will say, sir, you have said 4th July, it has not happened. No, it is not like that. I am again repeating, we are not aware when exam will happen. But it is safe to assume a date and then target according to that date. And if date get postponed, we get extra time. Because in a competition, important is not what I am doing. Important is whether I am doing better than others. Others are preparing. So keep your focus on study. We are continuing to post self-study plan on daily basis. Follow those tips. Identify your weak areas and improve. Some of you are mentioning, sir, I am not able to improve. How other persons are improving? Tell me. Other persons are able to improve because they are implementing the self-study plan. In self-study plan, it is in two parts. One part is attempting a particular mock test. If you are not attempting that particular mock test, that means you are missing that. The link of that mock test is available in description and comment column, and I am advising you to take annual plan of that mock test. If you have not taken, that means first part is not implemented. Now after attempting that mock test, that is the particular mock test, identify your weak areas. Have you read the grammar book after that? Have you read the NCERT book after that? That is crucial. Because when I confront the people, those are saying I am not improving. Whenever I ask, sir, have you read the grammar book? The candidate said no. Have you read the NCERT book? The candidate said no. So from where improvement will come? If you are not adding knowledge to your kitty, improvement will not come. Improvement means identifying our weak areas and adding knowledge to that kitty. Okay? Unless you do that, nothing will happen. So God bless you all. Assume some date and start working on those lines. Self-study plan videos are posted daily in morning. If you are not getting the notification, check whether you have subscribed the channel. If you have not subscribed, click the link and subscribe. Then keep your notification bell also on so that you get the notification and you are able to follow those tips. Okay? Another way is visit this channel daily, see the videos, and out of videos there will be one video on self-study plan. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. काफ़ी कमेंट्स में पढ़ता हूँ सुबह उठ के. जैसे ही सुबह होती है, नया दिन शुरू होता है, हम कमेंट्स पढ़ते हैं. कुछ कमेंट्स रात को लोग डालते हैं, कुछ अर्ली मॉर्निंग डालते हैं. और उसमें जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ सामने आती है कि चिंता. अधिकांश कैंडिडेट इस चिंता से घिरे हुए हैं कि क्या जुलाई में एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे. होंगे तो कब होंगे, कैसे होंगे. अब आज एक कैंडिडेट ने कहा, सर वेस्ट बंगाल में तो 1 जुलाई तक बढ़ गया है लॉकडाउन, किसी और स्टेट में भी बढ़ सकता है. ये सब चिंता के विषय हैं. अब आप देखेंगे दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से अभी भी हम कंट्रोल में नहीं कह सकते सिचुएशन को. पहला है वैक्सीनेशन स्लो हो गई है. मई जून के अंदर वैक्सीन ना अवेलेबल होने की वजह से उसकी रफ्तार बहुत ढीली पड़ चुकी है. अब सरकार कह रही है कि इसको बढ़ा देगी स्पीड को. देखने वाली बात है बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है. दूसरा ये है कि जो कंसंट्रेशन है इन केसेस की, अब कुछ स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है, कुछ में बहुत कम है. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आंकड़े कम इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग ही कम हो रही है. ये भी सच हो सकता है, पर क्या सच है क्या झूठ है ये हम नहीं जान सकते. हम तो वही जान सकते हैं जो डेटा हमें अवेलेबल है. तो हम उस बहस में पढ़ने की बजाय यदि हम उस तरफ ध्यान दें जो हम कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? हमें एग्ज़ाम पास करना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करके कंपटीशन को पार करना है और उसके बाद नौकरी मिलनी है. अब डेटा सही है गलत है इस पे बहस करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा. तो हमें क्या करना चाहिए?
मेरा मानना यह है कि हमें एक आर्टिफिशियल डेट, इमेजिनरी डेट अपने दिमाग में डालनी चाहिए। मान लीजिए मैं ये डेट डालता हूं कि 4 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा। ये इमेजिनरी है, किसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं है। कल को आप कहो जी आपने 4 जुलाई बोला था उस वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला। 4 जुलाई हम अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। हम एक इमेजिनरी डेट अपने दिमाग में डाल रहे हैं कि हो सकता है 4 जुलाई को एग्जाम हो जाए। अब जब ये डेट मेरे दिमाग में फिक्स हो जाएगी तो मेरे को पता लग गया कि अब मुझे आने वाले 15-16 दिन के अंदर तैयारी कर डालनी है कि अगर 4 को एग्जाम होए तो मैं पास कर लूँ। ठीक है, अगर मैं ये सोचता रहूँगा एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, कितने दिनों बाद होगा, होगा भी कि नहीं होगा, तो मेरा मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि कोई डेट निर्धारित ही नहीं है। और जब तक लक्ष्य नहीं होता तो मन नहीं बनता। तो हमें कई बार आर्टिफिशियल लक्ष्य भी अपने लिए रखने पड़ते हैं। तो जब डेट पक्की नहीं हुई है तो हम अपने मन में एक डेट पक्की कर लें। ये क्या है, इमेजिनरी डेट इसको हम बोलते हैं। हमने अपने मन में धार लिया कि 4 जुलाई को एग्जाम में मुझे बैठने जाना है। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 1 हफ्ते बाद हो जाएगा, 1 हफ्ता और मिल जाएगा, 2 हफ्ते बाद हो जाएगा और मिल जाएगा टाइम। पर यदि मैंने ये धार लिया कि नहीं होएगा एग्जाम और अचानक एग्जाम हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एग्जाम की डेट क्या है ये किसी को नहीं पता है, पर एग्जाम होगा ये सबको पता है। तो हमें एक इमेजिनरी डेट अपने मन में धारण करके तैयारी करते रहना है। और उसकी मदद के लिए हम क्या कर रहे हैं, रोज सेल्फ स्टडी प्लान में आपको दे रहा हूं, उसको फॉलो करिए। अब कई लोग कहते हैं कि सर उसमें तो इम्प्रूवमेंट आ गई, मेरे में नहीं इम्प्रूवमेंट आ गई है, मुझे भी बताओ कैसे इम्प्रूवमेंट है। देखो अंतर क्या है, जो व्यक्ति सेल्फ स्टडी प्लान को अक्षरतः इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको डेफिनेटली फायदा हो रहा है। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को सुन रहे हैं पर लागू नहीं कर रहे। अब मान लो मैंने एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट किसी पर्टिकुलर डे को करने को कहा, क्या आपने किया? कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो पहले ही कर चुका हूं। वो बात नहीं बनी ना। फिर अगर कोई चीज किसी दिन करने के लिए कही जा रही है उसी दिन आपको वो करना चाहिए। उस मॉक टेस्ट का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट कॉलम में भी दिया है। उसको क्लिक करिए, रजिस्टर करिए, एनुअल प्लान लीजिए। अगर कोई चीज आपको बताई जा रही है आपके फायदे के लिए, उसको लागू तो आप ही करेंगे ना, तो उसको करिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बार बार मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंदर आपने अपनी कमियां ढूंढनी है, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। अब आपको पता लग गया मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए, क्या आपने ग्रामर बुक पढ़ी? आंसर निकल के आता है नहीं सर वो तो नहीं पढ़ी, पर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। जब मैं पूछता हूं क्या आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी? आंसर निकल के आता है सर वो तो नहीं पढ़ी पर इंप्रूवमेंट नहीं। अरे इंप्रूवमेंट आएगी कैसे? जो चीज आपको बताई गई वो तो आपने की नहीं। जो आपकी कमियां थी उसको दूर करने के लिए आपने सोर्स से काम ही नहीं किया। अब होता क्या, लोग कहते हैं सर आपने रन एंड मार्टिन बताइए, मैंने फला ग्रामर बुक से पढ़ी। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हें गंगा जल गंगोत्री से मिल रहा है तो आप हुगली से क्यों लेना चाहते हो? ठीक है, ये मतलब नहीं है हुगली से नहीं लेना चाहिए। मतलब क्या होता है, जो मेरा कहने का अर्थ है कि जहां पर बिल्कुल नेचुरल सोर्स है, जहां से ओरिजिनेशन हो रही है, वहां जो वो जल होगा वो ज्यादा साफ होगा देन जब वो रास्ते से ट्रेवल करेगा उसके अंदर इंप्योरिटीज ऐड होती चली जा रही है। समझ रहे हैं? अगर मुझे एक ग्रामर बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उस ऑथर की मिल रही है जो इंग्लिश ऑथर है और वेल नोन ऑथर है, तो उसको पढ़ने की बजाय मैं दूसरी किताबों की तरफ क्यों जा रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आता। या तो कोई मुझे पैसे खर्चने हैं उसके लिए, या वो उपलब्ध नहीं है, तब मैं अल्टरनेटिव पे जाऊंगा ना। वो चीज़ अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, फ्री से अवेलेबल है। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसी तरह आप मुझे मैथ्स इंप्रूव करना है, एनसीईआरटी की किताब बड़े बड़े प्रोफेसरों ने लिखी हुई है, उस किताब में उस बच्चे को वो सिखा देते हैं वो चीज़ जिसने कभी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं देखी। तो आप क्यों नहीं सीख पाएंगे उससे? आप क्यों नहीं सीख पाएंगे? सोचने वाली बात है। जो भी बच्चा है स्कूल में, उसने वो कंसेप्ट अपने जीवन में कभी नहीं देखा होता, पहली बार उसको इंट्रोड्यूस करते हैं वो और सिखा देते हैं।
आपने तो फिर भी कभी ना कभी उस कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है, तो आप क्यों नहीं सीख पाएंगे? तो अगर हमें एक रियल सोर्स मिल रहा है, सोर्स जहां से छोटे से छोटा बच्चा सीख पा रहा है, उसी सोर्स से यदि मैं सीखूं तो मुझे आसानी होगी। ये कारण है जो मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने के लिए कहता हूं। उसको लागू करिए। ये सारे लिंक आपको अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है। मैंने आपको मॉक टेस्ट का भी लिंक दिया है, उसको इस्तेमाल करिए। फिर करंट अफेयर का भी लिंक दिया है। सारे लिंक्स आपको दिए हैं, उनको इस्तेमाल करिए। सेल्फ स्टडी प्लान जो डेली पोस्ट करते हैं, उस वीडियो को अक्षरतः लागू करिए। अब कई लोगों को मानना है कि सर ये वीडियो मिलती नहीं है। उसका कारण क्या हो सकता है? आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, हो सकता है। चेक करिए सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। सब्सक्राइब किया है तो जो नोटिफिकेशन बेल है वो ऑन की हुई है कि नहीं, वो चेक कर लीजिए। रोज़ सुबह सुबह ये वीडियो डलती है। अगर आपको नई भी नोटिफिकेशन आई है, चैनल पे आइए और जो वीडियोस वाला लिंक है उसको देखिए, उसमें कोई वीडियो डली हुई है आज, वहाँ से देख लीजिए। पर सेल्फ स्टडी प्लान डेली बेसिस पे करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।